Hello everyone. Thank you for joining us. IEEE PF-KIET Student Branch welcomes and officially celebrates IEEE Day with presenting you a Power webinar series. This day marks the first time in history when engineers worldwide and IEEE members gathered to share their technical ideas in 1884. This celebration demonstrates the ways thousands of IEEE members in local communities join together to collaborate on ideas that leverage technology for a better tomorrow. Now, built into the core, the theme for IEEE Day is Leverage Technology for a Better Tomorrow. The third webinar entitled for today is Innovation from Design to Product by Mr. Hamza Ihtisham, former SSR and current SSC chair in IEEE Lahore section. Thank you very much, sir, for joining us today. Before we begin, all our participants are requested to keep your mics and videos turned off during the entire session. We will have a question answer session at the end in which you can raise your hand and the host will give you the opportunity to ask your questions. You can also send any questions or messages to the host through the chat with your name and affiliation at the end. Now, without further ado, we will hand over the control to our most esteemed speaker, Mr. Hamza Ihtisham. Thank you very much. Thank you very much, Navira Khan. Thank you very much for the introduction. And thank you very much for having me on the occasion of IEEE Day. IEEE Day, no doubt IEEE Day is one of the uh, most celebrate kind of celebrative day in the community of IEEE. And it's very amazing to be here with you on the day of IEEE Day. Today, I will discuss on the innovation design to product. Uh, जो भी बात यहाँ पे मैं करूँगा आज की प्रेजेंटेशन में वो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं और मेरी अपनी लर्निंग्स हैं। उनको मैंने कोशिश तो की है कि मैं समराइज़ कर सकूँ, लेकिन उसको प्रेजेंटेशन में देना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर इसको इंटरेक्टिव ज़्यादा रखना चाहूँगा। तो हमारे पास वी हैव 10 पार्टिसिपेंट्स। मुझे मुझे रफली चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप में से थर्ड ईयर और फाइनल ईयर वाले कितने हैं? मतलब एस्टिमेट हैंड रेज कर दें, थर्ड ईयर वाले हैंड रेज करते हैं अपनी चैट बॉक्स में या अपने जूम पे। एक दो। फाइनल ईयर, थर्ड ईयर वाले हैंड्स डाउन कर लें अपना, फाइनल ईयर वाले हैंड रेज कर लें। फाइनल ईयर वाले कोई नहीं है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। और कोई स्टूडेंट नहीं है प्रोफेशनल? ओके ओके ओके, चले। ऑडियंस बड़ी डाइवर्सिफाइड है, कोशिश मैं करूँगा कि सब चीज़ें कवर हो जाएं। और आज का जो थीम है वो है इनोवेशन फ्रॉम डिज़ाइन टू प्रोडक्ट। सो माय नेम इज़ मोहम्मद हमजा इख्तिशाम और मैं नेटवर्क सुपरविजन स्पेशलिस्ट हूँ जैज़ पे। आई एम टेडेक्स स्पीकर, IEEE वर्ल्ड ग्रेजुएट, currently Student Activity Committee Chair and the General Secretary of IEEE Industrial Application Society Lahore Section और मल्टीपल अवार्ड होल्डर। और मैं यहाँ पे वो वाले अवार्ड्स आपके साथ शेयर करूँगा जो आपके प्रोजेक्ट को कंसोलिडेट करेंगे। आई वॉन्ट द सेकंड प्राइज इन IEEE IES CMD Berenzagar Contest 2018, second prize all over the world, third prize again in IEEE IES CMD Berenzagar Contest 2019, third prize around the world। और I got honorary mention from IEEE Communication Society for the IEEE Comps of
student project competition in 2018. I was the first Pakistani or South Asian who have this honorary mention. इन्होंने 5 साल पहले अपना स्टूडेंट कंपटीशन लॉन्च किया था और अभी तक एशिया के अंदर ये अवार्ड सिर्फ मेरे पास है, वो भी ऑनरी मेंशन है। मतलब कि ऑनरी मेंशन इज फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पोजीशन। Fourth, fifth, sixth positions are honorary mention. First, second, third positions are the actual winning position. Or I delivered the TEDx talk at Punjab University and FC College. और टेक्निकल TEDx इज़ रियली हार्ड क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी आपके पास कॉन्स्ट्रेंट्स भी कह सकते हैं और बहुत सारे उनकी पॉलिसीज़ हैं जिस पॉलिसीज़ पे वो आपकी सारी टेक्निकल प्रोग्रेस को इवेलुएट करते हैं ताकि TEDx के प्लेटफॉर्म पे कोई बोगस या सूडो साइंस ना प्रेजेंट हो, वो आपको देते हैं। टेक्निकल टॉक एट TEDx इज़ अ बिग थिंग। IEEE published my video on IEEE.tv और अब पता नहीं आपको आवाज़ आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बताता रहता हूँ। आई ऑर्गेनाइज द फर्स्ट समर स्कूल ऑफ रीजन 10। Then I appointed as a section student representative of IEEE Lahore section from 17 to 18. In that time, I arranged and delivered 38 plus talks as a guest speaker. I delivered talk at different student branches of IEEE Lahore section. This is the 50th year celebration of IEEE Lahore section. Then I got a chance to attend IEEE Region 10 Congress, and over there I met the CEO and president of that time. I was a speaker over there as well in Bali. I organized the first interactive meeting with industry. I lead the climate change program as well in 2017. 2019, I led the IEEE contest as ambassador lead. I'm active member of 2 international conferences, 2 congresses. This video, I triple published this video at the end of 2018, in the beginning of 2019. So now I am member of 3 conferences, member of international conferences, and award, and there are 2 more awards has been added in the video. Is not included in the video. मुझे फोटोग्राफी का भी शौक है, तो एंड वाली ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये मैंने ही क्लिक की हुई है अपने मोबाइल फोन से। दिस वाज द वीडियो जो IEEE टीवी ने पब्लिश की थी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप IEEE टीवी पे भी जाकर देख सकते हैं, आवाज़ के साथ तो बहुत अच्छी लगती है। तो आज जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे या जो चीज़ें मैं जिन पर फोकस करूँगा वो है इनोवेशन। इनोवेशन और क्रिएटिविटी, relation, how to design a product, and the projection of your product, and at the end we will have
question answer session. In this scenario, in this presentation, you can consider product as your project or as your final project as well. So, the product is similar to the final project. What is innovation? इनोवेशन बहुत सारी जो है ना वो मुख्तलिफ रिसर्चर्स मुख्तलिफ साइंटिस्ट मुख्तलिफ इनोवेटर्स ने इनोवेशन को मुख्तलिफ तरह से एक्सप्रेस किया है मुख्तलिफ तरह से इसको डिफाइन किया है बट आई थिंक इनोवेशन फॉर मी इज कॉमनली डिफाइंड जो मुझे लगती है वो इज लाइक कमिंग अप विद सम न्यू ideas or new combinations, uh, new goods, new methods of production, new like opening of new markets in terms of new products or or to implement something new in an organization. These things are like in the spectrum of innovation. There are four types of innovation. Radical innovation. Radical innovation establish a new dominant design and hence a new set of core design concept in component linked together in an architecture. There is an incremental innovation. Incremental innovation defines and extend an established design. Like जो चीज़ पहले से डिफाइन हुई है, it's उसको increment कर देना, extend a new design. This architectural innovation is kind of the buildings, the and the modular uh, innovation. Innovation that changes the core design and concept of technology. और मॉड्यूलर आजकल हम एज अ स्टूडेंट एज अ टेक्निकल स्टूडेंट टेक्नोलॉजिस्ट और टेक्निकल एंथुजियास्ट हम फोकस हमारी जनरेशन या हमारी जो फील्ड के लोग हैं उनका फोकस ज़्यादा मॉड्यूलर इनोवेशन पे है जो टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को रिवैम्प करते हैं उन पे नई प्रोडक्ट्स लेके आते हैं हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने मॉड्यूलर इनोवेशंस पे अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन की हैं सबसे बड़ी एग्जांपल तो हम फेसबुक यूज़ करते हैं हम मोबाइल पे जो ये जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं कैब के लिए तो ये सब जो है ये काइंड ऑफ मॉड्यूलर इनोवेशंस में आती है अब इनोवेशन तो है लेकिन इनोवेशन का क्रिएटिविटी से क्या कनेक्शन है मतलब बहुत सारे लोग कहते होंगे आप तो आपने भी सुना होगा कि यू हैव टू बी क्रिएटिव फॉर डेवलपिंग समथिंग न्यू एक्चुअली क्रिएटिविटी का और इनोवेशन का आपस में लिंक तो ज़रूर है लेकिन इनका कोरिलेशन उस तरह नहीं है जिस तरह हम इसको सोचते हैं creativity is just is creativity is more close to the literature people the arts and design people the thinkers to implement that creativity in some organization is kind of innovation or invention there is a invention and innovation में difference है invention आपके पास to build a product you have money to have some invention and for innovation you create money आप अपनी इनोवेशन से वो लेते हैं टर्नओवर लेते हैं अपनी अपनी इनोवेशन आपने एक प्रोडक्ट बनाया आपकी वो इनोवेशन है आप उस इनोवेशन से पैसे अर्न कर रहे हैं ये आपकी इनोवेशन है जब आप पैसे एक दफ़ा अर्न करना शुरू हो जाते हैं इसकी एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि एक कंपनी है जो XYZ प्रोडक्ट बना रही है जब उन्होंने ये प्रोडक्ट पहली दफ़ा बनाया होगा तब ये उनकी इनोवेशन थी तब उनके पास पैसे नहीं थे उन्होंने पैसे बना बना के एक कंपनी स्टैब्लिश की अब उसको इन्वेंट कर रहे हैं बार बार री इन्वेंशन करके उसे वो पैसा जनरेट कर रहे हैं सब चीज़ें उनके पास एक सर्कल में आ गई है क्रिएटिविटी के अंदर आपके आइडियाज इमेजिनेशन थॉट्स कॉन्सेप्ट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया ब्रेनस्टॉर्मिंग क्रिएटिव प्रोसेसेस
इंग्यूनिटी, ये सब आपकी क्रिएटिव साइड है माइंड की। और इनोवेटिव साइड के अंदर आपके प्रोसेसेस हैं, वैल्यूज, इन्वेंशंस, इम्प्लीमेंटेशन, यूजफुल चेंजेस, एनेबल प्रोडक्ट्स, न्यू वेरिएबल्स, ये आपकी इनोवेशन है। इन दोनों को मर्ज करना, ये जो है ना वो हमारा टास्क होगा आज का। और ये टास्क ज़्यादा जो है वो मेरा फोकस क्वेश्चन आंसर्स पे होगा। आप फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, राइट डाउन करते रहिए और हम एंड पे सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। अब इनोवेशन इज लाइक द प्रोसेस टू कन्वर्ट योर क्रिएटिव आइडियाज into commercial success. This is an analogy for this slide. It's turning your new concepts, new ideas for some industrial or organizational process. But creativity is the, like, as I said earlier, the turning new and imaginative ideas into reality. Writing a book, writing a novel, designing a wall or painting. These things are more like of creative thing, not an innovative thing. Or development of a new mobile application. Although you need some creative ideas for that thing, but we consider them as an innovation, not in creation or creativity. ये कुछ बहुत ही सिंपल इनोवेशन है, इतनी सिंपल भी नहीं है जितनी लग रही है। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी इनोवेशन टायर है, इन्वेंशन जिसे हम कह सकते हैं। टायर टायर की बाद ही सारी जो है ना वो साइंटिफिक हिस्ट्री, साइंटिफिक जनरेशन की बिगनिंग है, उसका इरा स्टार्ट होता है टायर। और ये, लेकिन आज अगर हम कंसीडर करें तो बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना हम इन्हें स्मॉल और माइक्रो कह सकते हैं, इनोवेशन कंसीडर करते हैं। पेपर क्लिप है, थंब पिन है, स्टैंड है, बल्ब। बल्ब शायद आज के ज़माने में सिंपल इनोवेशन कंसीडर किया जाए, लेकिन जब ये इसकी बन रहा था, जब इसकी इसको डिज़ाइन किया जा रहा था, इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स थी, बहुत ज़्यादा फेलियर्स थे। उसके बाद एक सक्सेसफुल ग्रो था। और ये पूरी डॉक्यूमेंट्री कहीं पे भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। हम आज के ज़माने में शायद इनको सिंपल कह रहे हैं, बट जब ये डेवलप हो रही थी, इनके पीछे क्या थ्योरीज थी, क्या आइडियाज़ थे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। ये डेफिनेटली ये हैं तो इनोवेशंस, पर इनके पीछे कुछ क्रिएटिविटी थी, कुछ इश्यूज थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिनको काउंटर करने के लिए इनोवेटर्स ने ये चीज़ बनाई कि हम अगर पेपर क्लिप है तो हम पेपर्स को कैसे हम जॉइंट कर सकते हैं। लाइट का इशू था, बल्ब बना। बाइक के तो चले हम इसको थोड़ा सी मॉडर्न इनोवेशन के अंदर भी कंसिडर कर सकते हैं। स्टैंड, इसका टायर, क्या इश्यूज थे जिनकी वजह से टायर बनाना पड़ गया। तो अब के लिए लोग ये चीज़ें सिंपल है, क्योंकि अब जो है वो इरा, अब जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों का माइंडसेट वो थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। लोगों के माइंडसेट्स के अंदर नई चीज़ें आ रही हैं। अब ये सिंपल है, और कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटी में है। हम आज के ज़माने में कॉम्प्लेक्स इनोवेशंस के अंदर हम बिग डेटा को ले सकते हैं, मशीन लर्निंग को ले सकते हैं, क्योंकि उसके चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड है। हमारे हमारे सिस्टम्स को वो जो हम जिस सिस्टम्स में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं उनकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो इनोवेशन तो है, लेकिन देयर आर सम सिंपल इनोवेशन एंड सम कॉम्प्लेक्स इनोवेशंस। ये आज का टॉपिक, हाउ टू डिज़ाइन अ प्रोडक्ट। और मैं सिर्फ ये प्रोडक्ट और ये सारा टॉपिक जो है ना मैं एक लाइन में बता दूंगा, उसके बाद प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी और हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, मतलब जल्दी खत्म हो जाएगी। अब प्रोडक्ट डिज़ाइन करना या प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ जिसकी ज़रूरत है ना, वो है आइडेंटिफाई द लोकल प्रॉब्लम और क्रिएट अ न्यू आइडिया। अब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, लोकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, या क्रिएट आइडिया, न्यू आइडिया कैसे किया जाए, इन दो चीज़ों पे पहले बात करते हैं। लोकल प्रॉब्लम
जब भी आपकी कोई प्रोडक्ट, आपका कोई प्रोजेक्ट बनता है, कोई चीज़ मार्केट में आती है, डेफिनेटली उसके पीछे कोई प्रॉब्लम होता है, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम होता है। आप बिना प्रॉब्लम के इनोवेशन बिना प्रॉब्लम के भी इनोवेशन हो जाती होगी, होती भी होगी, लेकिन पहले काम शुरू प्रॉब्लम से ही होता है। आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, तभी आप उसकी प्रोसेसेस पे बेस पे आप उसका कोई सोल्यूशन डिफाइन करते हैं। लोकल प्रॉब्लम्स कौन सी हो सकती हैं? लोकल प्रॉब्लम्स, मैं जिन चीज़ों पे रिकमेंडेशन देता हूँ या मैं जिन चीज़ों को प्रेफर करता हूँ कि एज अ स्टूडेंट और एज अ स्टूडेंट ही अगर हम बात करें और एज एन इनोवेटर, हम अपने लोकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें। लोकल प्रॉब्लम इज़ लाइक कि मैं एक जगह पे रहता हूँ और मेरे इस एरिया के अंदर मेरे इन लोगों का ये इशू है। अब अगर सपोज मैं अपनी बात करूँ, मैं अब रहता हूँ लाहौर में रहता हूँ और मेरे एरिया में सपोज मैं कहता हूँ कि रात को लाइट चलती रहती है और वो बंद नहीं होती है। तो मैं तो ये प्रोडक्ट आसानी से डिज़ाइन कर सकता हूँ कि मैं सेंसर डिप्लॉय करूँ कि वो अल्ट्रासोनिक सेंसर से आइडेंटिफाई कर ले कोई ह्यूमन बीइंग या कोई गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, तो उसे लाइट ऑन हो जाए, स्ट्रीट लाइट चली जाए तो बंद हो जाए। ये मेरा एक लोकल प्रॉब्लम था। लोकल प्रॉब्लम को मैंने एड्रेस किया एक सेंसर लगा के। सेंसर लग गया, मेरी फ़ायदा हुआ, मेरी मेरी सोसाइटी की वो है इलेक्ट्रिसिटी सेविंग। मेरी सोसाइटी को एक अच्छा इनोवेटिव आइडिया मिल गया, एक प्रोडक्ट मिल गया। करना कुछ भी नहीं, सॉल्यूशन आपको पता है, प्रॉब्लम आपने खुद ढूंढनी है और चीज़ें मिल जाती हैं। अब मेरे घर के करीब से अब जो है मैं एड्रेस करना शुरू करूँ कि मेरे घर के करीब एक जगह पे है, वहाँ पे पानी ठीक नहीं आता। मैं क्या करूँगा, प्रॉब्लम मुझे मिल गई, मैं वहाँ पे अपने सेंसर्स डिप्लॉय करूँगा, अपनी चीज़ें सेंस करूँगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि पानी ठीक नहीं आता तो क्यों ठीक नहीं आता। देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन लाइक सरकास्टिकली अगर बात करूँ तो पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है। तो प्रॉब्लम्स आपने देखनी है। लोकल प्रॉब्लम्स करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी अपनी कम्युनिटी को सर्व कर रहे होते हैं। आप जहाँ पे रहते हैं, आप उस कम्युनिटी को सर्व कर रहे होते हैं। आप अपने एरिया को सर्व कर रहे होते हैं। आप अपनी अपनी सिटी को सर्व कर रहे होते हैं। तो लोकल प्रॉब्लम्स को मैं ज़रूर इनकरेज करता हूँ, सिर्फ इस वजह से कि आप अपने एरियाज़ की, अपनी सोसाइटीज़ की, अपनी कम्युनिटी की प्रॉब्लम देखें, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करें। ये तो हो गई आपके पास लोकल आइडेंटिफिकेशन कि आपने लोकल प्रॉब्लम कैसे लेनी है और उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। अब क्रिएट अ न्यू आइडिया। न्यू आइडिया कैसे बनता है? न्यू आइडिया बनाने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ पे मैंने क्रिएटिव होने की बात की थी। अब क्रिएटिव होने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, आइडिया क्रिएशन इज नॉट एन ईजी थिंग। मतलब लाइक हम बात करते हैं आइडियाज़ की, पर आइडिया क्रिएशन इज नॉट एन ईजी। आइडिया क्रिएशन के लिए लोगों को सारी ज़िंदगी लग जाती है, फिर भी उनके आइडियाज़ सक्सेसफुल स्टेज तक नहीं पहुंच पाते हैं। आइडिया क्रिएशन इज़ एन हार्ड जॉब, इज़ रियली हार्ड जॉब। अब इसको सिंपलाइज कैसे किया जा सकता है, मैं अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे आपको बताता हूँ कि आप किसी आइडिया को सिंपल फॉर्म में कैसे लेके आ सकते हैं। आइडिया तब हमेशा जनरेट होता है जब आप क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन भी आप तभी करेंगे डेफिनेटली जब कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन why kids are more like they have more ideas than you because they ask question every time। वो हर टाइम पे क्वेश्चन करेंगे बच्चे, इसलिए वो ज़्यादा क्रिएटिव है। और शॉर्टकट वे में अगर आपको कोई बहुत अच्छा आइडिया चाहिए, बच्चों के साथ बैठे कार्टून देखें। अब तक की जितनी भी इनोवेशन हुई हैं, अब तक की जितनी भी इन्वेंशन आज तक हुई हैं, वो एक कार्टून से ही स्टार्ट हुई है। 90s के कार्टून हैं, उसके पीछे के कार्टून हैं, वो देखें, आइडियाज़ है वहाँ पे। अब वो आइडियाज़ क्यों है, वो बच्चे को आइडियाज़ इमेजिनेटिव और बच्चे को क्रिएटिव बनते हैं बच्चे। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, डेफिनेटली एथिकल कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं, बन चुकी होंगी पहले, लेकिन न्यू आइडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी तीन चार चीज़ें हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप
4 साल अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अगर आप अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना शुरू करें एट द एंड ऑफ योर थर्ड ईयर, तो आपने 3 साल 6 सेमेस्टर्स पढ़े हैं। 6 सेमेस्टर्स के अंदर अगर आपने एवरेज हर सेमेस्टर के अंदर 6 कोर्सेज पढ़े हैं, तो 36 कोर्सेज पढ़े हैं। अब 36 कोर्सेज के अंदर आपके पास अगर एक भी आइडिया नहीं है, 36 कोर्सेज पढ़ने के बाद अगर आपको फिर भी कोई आइडिया नहीं मिल रहा, फिर आप अपने लोकल सॉल्यूशंस की तरफ जाएँ, लोकल प्रॉब्लम्स की तरफ जाएँ। बस प्रायोरिटी इज़ योर ओन आइडिया, जो आपने उन 36 सॉल्यूशन से निकालना है, 36 सॉरी कोर्सेज से निकालना है। अब 36 कोर्सेज को आप मर्ज कर सकते हैं, 36 कोर्सेज को आप उनकी कोर स्टडीज़ में जा सकते हैं, उनकी डेप्थ में जा सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। At least at the end of your third year, you have the idea, you have your own idea extracted from your 36 courses. अब ये दो चीज़ें हो जाती हैं, आपके पास आपका अपना आइडिया है, उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, या आपके पास एक लोकल प्रॉब्लम है, आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। नाउ यू हैव योर लाइक द थीम और द डिज़ाइन और द आइडिया ऑफ योर प्रोडक्ट। अब आपने उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? ये वो चीज़ है जो हमें स्कूल में 7th क्लास में पढ़ाई जाती है, लेकिन शायद हम तब उसको समझते हैं कि ज़िंदगी में कभी काम नहीं आएगी, पर ज़िंदगी में अब काम आएगी। साइंटिफिक अप्रोच आपने यूज़ करनी है। किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करेंगे ना, तो आप उसको हम शायद यूज़ भी करते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन हमें पता नहीं है। शायद हमने उसको कभी इस पर्सपेक्टिव में नहीं देखा कि हम साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करें या नहीं करें, लेकिन हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। अब इस साइंटिफिक अप्रोच को मैं एक अपनी एग्जांपल से जो है ना वो सपोर्ट करूँगा, और मैं आपको बताऊँगा कि मेरी एक प्रोडक्ट में मुझे क्या इश्यूज आए। तो फिर जब मैंने इस मेथड के थ्रू इस मेथड के थ्रू मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, तो क्या रिजल्ट्स आए, और अगर मैं इस मेथड के थ्रू इम्प्लीमेंट ना करता तो क्या रिजल्ट्स आते। साइंटिफिक मेथड को हमने यूज़ किया स्कूल में। 6, 7, 8 बायोलॉजी की किताब में पढ़ाया जाता था कि कोई मलेरिया आ गया, और उन्होंने ऑब्जर्व किया और पता नहीं कोई मेडिसिन निकल आई। मैं बायो का स्टूडेंट नहीं था, स्कूल में भी नहीं था, तो लेकिन बस ऐसे ही सुना मैंने कि उन्होंने फिर ये किया, ऑब्जर्वेशंस ली, ऑब्जर्वेशंस लेने के बाद हाइपोथेसिस बनाए, हाइपोथेसिस के बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद कंक्लूजन निकाला, और थ्योरी लॉ पता नहीं क्या क्या बन गया। ये साइंटिफिक अप्रोच है। अब इस साइंटिफिक अप्रोच को हमने कैसे यूटिलाइज करना है, और मैंने कैसे यूटिलाइज किया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था, मैंने एक प्रोडक्ट मैंने बनाया, मेरा स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम मैंने बनाया अपना। हमारे लाहौर से थोड़ा सा बाहर निकले, मेरा एक फ्रेंड यूनिवर्सिटी में आता होता था, वो एक जो है ना वो रूरल एरिया से आता होता था। तो उसके साथ मैंने सारी उसको मैंने ऑन बोर्ड लिया, उसको मैंने कहा कि तुम अपने जो है ना गाँव के अंदर मुझे थोड़ी सी दो प्लेस दो, मैं एक एक स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम डेवलप करना चाहता हूँ जो मैं वहाँ पे डिप्लॉय करूँ। तो अभी साइंटिफिक अप्रोच कुछ भी नहीं किया हमने, मैंने सारा प्रोडक्ट बनाया, मैंने उसके ए टू जी मैंने उसको इतना सोफिस्टिकेटेड बनाया, स्मार्टफोन्स इंटीग्रेशंस की मैंने, ये सब मॉड्यूल्स की इंटीग्रेशंस की मैंने, इतना कुछ उसका सोफिस्टिकेटेड बनाया, फुली ऑटोनोमस कर दिया मैंने, बहुत अच्छा बनाया। अभी सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन जो मैंने थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू गूगल कंसाइज की कि एक स्मार्ट फॉर्म या एक स्मार्ट जो है वो फॉर्मिंग सिस्टम के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। मैंने एक सिंपल ऑब्जर्वेशन की, उसको मैंने पकड़ लिया और उसको मैंने बना दिया। अब मैंने बना दिया, अब मेरा मेरा अपना हाइपोथेसिस ये कह सकते हैं ये था कि मैं किसी भी जगह पे जाऊंगा, मैं जाके किसी भी फार्मर को कहूँगा कि मैं आपकी जो है ज़मीन है इसमें मैं ये चीज़ डिप्लॉय करना चाहता हूँ। तो वो कहेगा हाँ 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 हमजा साहब आप आएँ और डिप्लॉय करें, और हम तो चाहते थे कि कोई बंदा आए और डिप्लॉय करे। सारा कुछ हो गया। अब सब चीज़ें लेके मैं एक जगह पे चला गया उसके साथ, मुझे वो लेके गया कि यहाँ पे हम इसको टेस्टिंग कर सकते हैं। अब वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे थे, मैंने उनसे एक, अब ये वो चीज़ें थी जो मैंने भी ये अप्रोच इम्प्लीमेंट ही नहीं की,
ऐसे ही जाके उनसे बात करनी शुरू की। अब उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया, किसी एक ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। वो एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? अब उसकी उसकी रिजेक्शन हमारी प्रोडक्ट की स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्शन हो गई कि जी आपकी प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे नहीं चलेगी। वापस आए, वापस आ गए, फिर हमने साइंटिफिक अप्रोच यूज़ की। साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करने के लिए हमने सबसे पहले करनी थी ऑब्जर्वेशंस, कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया था, जो प्रोडक्ट मैंने डिज़ाइन किया था, वो शायद पाकिस्तान में लगने के लिए था ही नहीं। इतना जो उसकी जो ये कह सकते हैं कि उसकी जो डिज़ाइनिंग थी, क्योंकि मैंने फील्ड में उसको नहीं ऑब्जर्व किया था, मैंने उसको ऑन इंटरनेट सर्फ किया था, और इंटरनेट सर्फिंग के बाद मैंने उसका आइडिया कुछ चीज़ करके प्रोडक्ट बनाई थी। वो चीज़ पाकिस्तान में लगने के लिए थी ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर फिर हमने ऑब्जर्वेशंस करनी शुरू की। हम मुख्तलिफ लोगों के पास गए, मोर देन 30 to 40 पर्सन्स को हमने अप्रोच किया। उनसे हमने उनके प्रॉब्लम्स पूछे कि अगर आप एज अ फार्मर यहाँ पे काम करते हैं दिन में, आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं। जो थे, बड़ी उम्र के लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, वो तो उन्होंने तो हमें मतलब इस बारे में बात करना भी पसंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो अपने क्या कहते हैं फैमिली बैकग्राउंड उनका सारा फार्मिंग, तो वो कहते हैं कि हमें हम बेहतर जानते हैं। साइंटिफिक अप्रोच में फिर हमने ऑब्जर्वेशंस डेफिनेटली शुरू की। कुछ लोगों ने हमें पानी का सोल्यूशन मसला बताया कि हमारे यहाँ पे पानी का बहुत मसला है, कुछ लोगों ने हमें डिफरेंट तरह से मसले बताए। अब उन सब की ऑब्जर्वेशंस के बाद फिर हमने एक हाइपोथेसिस बनाया। उन सब की ऑब्जर्वेशंस के बाद जो हाइपोथेसिस बना ना, उस हाइपोथेसिस के अंदर कोई स्मार्टफोन नहीं था, क्योंकि किसी भी फार्मर को स्मार्टफोन चलाना नहीं आता था। उनकी नेक्स्ट जनरेशन को आता था, पर नेक्स्ट जनरेशन इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन देयर फार्मिंग। उन्होंने अपनी जो थी अपनी जो लैंड थी, वो उन्होंने किसी और मतलब काइंड ऑफ थर्ड पर्सन को दी हुई थी, जो उनके वहाँ पे सारी फार्मिंग करता था, और उनको सिर्फ साल बाद जो है ना वो आपका वो देता था, रेंट देता था लैंड का। हाइपोथेसिस ये बन गया कि उनको मोबाइल फ़ोन चलाना नहीं आता। वहाँ पे हमारे पास जो है ऑटोमेशन अगर हम कर देते हैं तो वहाँ पे लाइट भी नहीं आती। सारा सारा दिन कई दफ़ा लाइट नहीं आती, आपकी आईओटी डिवाइसेस फेल हो जाएगी, आपके आईओटी डिवाइसेस के बैकअप कब तक चलेंगे। एक एक ये चीज़ हाइपोथेसिस आ गई। एक हाइपोथेसिस आ गई कि आपके वहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, तो कई लोग आपको इम्प्लीमेंट करने देंगे, कई लोग आपको इम्प्लीमेंट करने नहीं देंगे। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कहा कि हर साल कोई ना कोई आता है, ऐसे हमारी तस्वीरें वगैरह खींच के चला जाता है और इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं होता है। तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते होंगे वहाँ पे, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट जाते होंगे, और ये प्रोजेक्ट क्वाइट कॉमन। तो लेकिन हमने उनको बहुत ज़्यादा इन डिटेल डिस्कशन के बाद हमने एक हाइपोथेसिस बना ली। हमने इनको जो भी सोल्यूशन देना है उसमें स्मार्टफोन नहीं होगा, अगर उसके अंदर होगा तो उसके अंदर मोबाइल फ़ोन होगा, मोबाइल फ़ोन के अंदर सिर्फ कुछ कमांड्स होंगे, और उस कुछ कमांड्स के बेस पे आपका सारा प्रोजेक्ट चल रहा होगा। और वहाँ पे जो भी सेंसर डिप्लॉय होगा, उस सेंसर को कोई आईओटी डिवाइसेस कैटर नहीं करेगी, उस सेंसर्स को सिर्फ एक एक सेंट्रल सिस्टम बन जाएगा, जिस सिस्टम की सारी डिवाइसेस आपकी सेंसर का डेटा आ रहा होगा, वो डेटा जो है वो जो है आपके एसएमएस के थ्रू कैटर हो रहा होगा। और डेफिनेटली इंटरनेट सर्विसेज वहाँ पे हैं भी, और अगर कोई इशू होगा तो जो वहाँ पे हमारा लोकल बंदा होगा वो इंटरनेट वहाँ पे अरेंज करेगा किसी भी तरह, और जो है ना फिर हम उसको करेंगे। और ये कुछ कुछ चीज़ों को हमने बनाया। उसके बाद हमने उसकी एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट की। हमने सेंसर्स वगैरह कुछ लिए, सॉइल सेंसर्स लिए, वाटर सेंसर्स लिए, पीएच मेजरमेंट के सेंसर्स लिए। हमने कुछ ऐसे सेंसर्स लिए जिसे हमें हम क्योंकि डेफिनेटली जितनी भी ग्रोथ होती है हमारी क्या कहते हैं ज़मीन से, जितना भी जो अनाज निकलता है, वो उसकी डिपेंडेंसी आपकी पीएच पे होती है। बाकी चीज़ फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। हमने उसके सारे फैक्टर्स लिए, हमने उसकी जितनी फर्टिलाइज़र्स हैं उन फर्टिलाइज़र्स पे एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट की, और एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद हमने एक अच्छी प्रोडक्ट बनाई जो वहाँ पे डिप्लॉय की।
और अच्छी प्रोडक्ट वही थी जो उनके काम की थी। पहले जो प्रोडक्ट मैं लेकर गया था वो मेरे काम की थी, उस प्रोडक्ट से मुझे फ़ायदा होना था, उनको फ़ायदा नहीं था होना। उन्होंने जो प्रोडक्ट डिज़ाइन करवाई वो बहुत चीप थी, मेरी प्रोडक्ट की निस्बत बहुत ज़्यादा चीप थी, और उस प्रोडक्ट में मुझे एफर्ट भी नहीं करनी पड़ी, और इस प्रोडक्ट में उनको फ़ायदा भी हो रहा है, और वो स्टिल दे आर यूजिंग दैट प्रोडक्ट। और क्योंकि वो हमें ज़्यादा लोगों ने अलाउ नहीं किया लगाने के लिए, क्योंकि लोग डरते हैं कि शायद इसका कोई उल्टा रिएक्शन ना हो जाए, या हम कुछ उनको गलत ना बता दें, या उनका जो हमारी साइंटिफिक अप्रोच गलत भी हो सकती है, हो भी जाती है, इट्स अ टेक्निकल थिंग, मिस्टेक हो जाती है, एरर है, और एक्यूरेसी इसके अंदर 100% कहीं पे भी नहीं है। तो लेकिन जिन लोगों ने डिप्लॉय की करवाई हमसे, और जिन लोगों को हमने सोल्यूशन प्रोवाइड किया, तो वो दे आर हैविंग दैट सोल्यूशन, दैट प्रोडक्ट सक्सेसफुली, और वो इसको इंजॉय कर रहे हैं। ये साइंटिफिक अप्रोच को मैंने अपनी एग्जाम्पल से इसको सपोर्ट किया, लेकिन अगर आप अपनी कोई भी आइडिया कोई भी लोकल लेके जाते हैं, अगर आपकी लोकल प्रॉब्लम है, तो फाइंड योर लोकल पीपल, जिनसे आप जो है अपनी ऑब्जर्वेशंस लें, उनसे पूछें, उनके मसले पूछें, फिर एक हाइपोथेसिस जनरेट करके उस पर एक्सपेरिमेंटेशन करें। अगर आप बिना ऑब्जर्वेशन या बिना आप लोगों की राय जाने हाइपोथेसिस क्रिएट करके एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे, तो आप प्रोडक्ट तो बना लेंगे, लेकिन उसकी डिप्लॉयमेंट में या उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आपको थोड़ा सा कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं। और अगर आपका न्यू आइडिया, तो अगर तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए ऑब्जर्वेशन, न्यू आइडिया के लिए ऑब्जर्वेशन ये होती है, फिर डेफिनेटली आप इंटरनेट सर्च करते हैं, इंटरनेट पे आप लेटेस्ट रिसर्च देखते हैं, और उसके बारे में फिर आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। अगर आप एक न्यू आइडिया जनरेट करते हैं, तो उसके अंदर एक टिप ये भी है कि आप जो है ना अपनी ये देखिए कि आप आज 2020 के अंदर ये आइडिया लेके आ रहे हैं, और 2025 के अंदर आफ्टर 5 ईयर्स या आफ्टर 7 ईयर्स या आफ्टर 10 ईयर्स इस पे क्या इम्पैक्ट होगा। अगर आप उसको आफ्टर 5 ईयर्स के मार्जिन पे रखते हैं, आफ्टर 10 ईयर्स के मार्जिन पे रखते हैं, तो आप मतलब अ स्मॉल आइडिया कैन मेक अ मैसिव चेंज in terms of technology, in terms of your development as well. आपकी प्रोडक्ट बन गई, आपका आइडिया बन गया, मतलब यहाँ तक मैं एज्यूम करता हूँ कि आप लोगों की प्रोडक्ट बन चुकी है। एक मेरी एग्जांपल मैंने आपको सपोर्ट किया, और आपको मैंने बताया कि आपने अगर इसको अप्रोच करना है तो आपने कैसे अप्रोच करना है। अब मैं एज्यूम करता हूँ आपकी प्रोडक्ट बन गई है। अब आपकी प्रोडक्ट को आपने प्रोजेक्ट कैसे करना है, कहाँ पे कर सकते हैं आप अपनी प्रोडक्ट को, या अपने प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है, इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, पहली चीज़ है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। राइट अ रिसर्च पेपर ऑन योर प्रोडक्ट एज अ स्टूडेंट, और एज एन इनोवेटर, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन और कंट्रीब्यूशन इन इंटरनेशनल कंपटीशन। प्रोजेक्ट शोकेस योर प्रोजेक्ट इन प्रोजेक्ट एग्जीबिशन, और बेस्ट पार्ट एस्टेब्लिश योर ओन कंपनी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर पेपर लिखना एज अ स्टूडेंट आजकल तो बहुत आसान है। आपके पास गूगल स्कॉलर है, आपके पास बहुत सारे रिसर्च टूल्स हैं, आपके पास बहुत सारे रिसर्च जो है वो प्लेटफॉर्म है। लाइक ट्रिपल एक्सप्लोर दुनिया का सबसे बड़ा टेक्निकल प्लेटफॉर्म, ई लाइब्रेरी है। आप वहाँ से पेपर्स उठाएं अपने रिसर्च के रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड। डेफिनेटली जब आप अपना प्रोडक्ट बना रहे होंगे, आप कुछ ना कुछ तो नेट से रिसर्च करेंगे, आप रिसर्च पेपर भी पढ़ेंगे, आप पुराने लोगों की रिसर्च भी देखेंगे। तो आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज इज़ द मेजर थिंग। आप अपना एटलीस्ट अपनी ग्रेजुएशन डेज में एक पेपर ज़रूर पब्लिश करें, क्योंकि डेफिनेटली वक्त के साथ साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही हैं, कंपटिशन्स बढ़ रहे हैं। अगर आपने अपने आप को वर्ल्ड किसी भी एक्स वाई जी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ compete करना है, यू हैव एटलीस्ट वन रिसर्च पेपर, एटलीस्ट वन।
मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेड में 2-2 3-3 पेपर भी निकल आते हैं बच्चों, बट यू हैव एटलीस्ट वन पेपर। इंटरनेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। लोग डरते हैं इसमें पार्ट लेने से। रीज़न क्या है कि हम इंटरनेशनल कंपटीटर्स को कैसे कम्पीट करेंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। आप लोग एक्टिवली कंट्रीब्यूट करें और पार्टिसिपेट करें इंटरनेशनल कंपटीशंस में, अपने प्रोजेक्ट्स भेजें, अपने प्रोजेक्ट्स को वहाँ पे इवैल्यूएट करवाएं, सीनियर लोगों से इवैल्यूएट करवाएं। इट विल गिव यू अ बिग सेटबैक। प्रोजेक्ट एग्जीबिशंस आपके पाकिस्तान में, आपकी यूनिवर्सिटी में, आपकी यूनिवर्सिटी से बाहर किसी और यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी कहीं भी प्रोजेक्ट एग्जीबिशन हो रही है, आप अपने प्रोजेक्ट को लेके जाएँ। लोग कमेंट करेंगे, आप उन कमेंट्स को पकड़ें, उन कमेंट्स को इम्प्लीमेंट करें। डेफिनेटली आप अपना प्रोजेक्ट लेके जाएंगे, लोग उस प्रोजेक्ट के ऊपर 10 चीज़ें आपको बता देंगे कि आप इसमें ये भी कर सकते हैं, इसमें वो भी कर सकते हैं, इसमें ये भी कर सकते हैं। और उनका जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है उसको पॉजिटिवली अब्जॉर्ब करें और उस आकर उसको इम्प्लीमेंट करें। या आप उसको अपनी, अगर आपकी प्रोडक्ट इतनी सोफिस्टिकेट बन गई है और इन सब प्रोसेसेस से भी गुजर गई है, डेफिनेटली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से गुजर गई है, आप एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन हो गई है, आपके रिसर्च पेपर बन गया है, आपकी इंटरनेशनल किसी प्लेटफॉर्म पे पब्लिश हुआ हुआ है, आप कभी भी अपनी कंपनी के अंदर वो आपका एक काइंड ऑफ पेटेंट हो जाती है चीज़, ये चीज़ मैंने बनाई है। आप अगर आप अपनी प्रोडक्ट को पेटेंट भी करते हैं तो आपके पास वो एक पेपर होता है जिसको दुनिया के कॉन्फ्रेंस, मतलब कॉन्फ्रेंस करवाती है, तो अच्छे अच्छे रिसर्चर्स को आपके पेपर भेजते हैं रिव्यू करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे रिसर्चर्स ने रिव्यू किया हुआ है, आपने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स भी विन किए हुए हैं, एटलीस्ट पार्टिसिपेट किया हुआ है, आपने प्रोजेक्ट एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो आप जब आप अपनी कंपनी बनाते हैं तो आपके पास ये सब चीज़ें एड हार्ड फॉर्म में होती हैं। आप कहीं कहीं पे भी अपनी कंपनी स्टैब्लिशमेंट के लिए एप्लीकेशन देंगे तो ये चीज़ें आपको कंसोलिडेट करेंगी। और डेफिनेटली जब आप और ये चीज़ें आपको जो आप इन चीज़ों से सीखेंगे भी, और डेफिनेटली जब आप अपनी इसको कंपनी में लेके जाएंगे तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी होंगी और आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मैच्योर होगा। और ये चीज़ें, अच्छा, अब ये चीज़ है कि आपके प्रोजेक्ट में होना क्या चाहिए। मैं कुछ इंटरनेशनल कंपटीशंस का जूरी मेंबर हूँ, जो हम IEEE के कुछ प्रोजेक्ट्स जो हम उधर भेजते हैं, मैं उनको इवेल्युएट किया है 2 साल। मैंने रीजनल कंपटीशंस को भी कुछ इवेल्युएट किया है। तो एज अ जूरी मेंबर किन चीज़ों पे फोकस किया जाता है, ये अब आपको प्रो टिप्स हैं। ये प्रो टिप्स जो हैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी में भी, मतलब आपको हमेशा काम आएगी ये प्रो टिप्स है कुछ। सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, कि जो प्रॉब्लम आप एड्रेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया है, उसका कितने परसेंट आप सोल्यूशन दे रहे हैं। आपकी जो डिज़ाइन है, आपका जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन कितने परसेंट जो है वो आपकी, मतलब अगर हम उसको डिज़ाइन की इनोवेशन कैटेगरी कौन सी है, या इनोवेशन की परसेंटेज कह सकते हैं, कि आपने जो प्रोडक्ट डिज़ाइन की है उसमें आपकी डिज़ाइनिंग में कितनी कंट्रीब्यूशन आपकी है और कितनी कंट्रीब्यूशन आपने किसी से इंस्पायर होके ऐड ऑन की है। आपकी इन्वेस्टिगेशन अप्रोच कैसी है, क्या आपने अपने प्रोडक्ट बनाई है तो आपने इसको कैसे इन्वेस्टिगेट किया, आपने कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और फिर आपने सॉल्यूशन इसका कैसे इन्वेस्टिगेट किया कि हाँ ये दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैन हेल्प और कैन एड्रेस ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ दैट। लेटेस्ट टूल यूटिलाइजेशन, कौन कौन से टूल्स आप यूज़ करते हैं, आप सिमुलेशन बेस्ड टूल्स यूज़ करते हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लेटेस्ट टूल्स जितने भी हैं। अगर हम बात करें हार्डवेयर मॉड्यूल्स की, तो शायद ऑर्डिनो इतना लेटेस्ट था जब नया आया था, अब उतना लेटेस्ट नहीं है। उसके डेफिनेटली उसके अपग्रेडेशंस तो आ रही हैं, लेकिन जो है उससे बेहतर भी कुछ हार्डवेयर मॉड्यूल्स मार्केट में आ चुके हैं जो ज़्यादा इफेक्टिव वे पे काम करते हैं। तो वो टूल्स भी हैं आपके। अगर आप अपने इस पे हैं CS या अपने दूसरी अप्रोच पे हैं, तो आपके दूसरे टूल्स कौन से हैं, आप जो आप जिस पे प्रोग्रामिंग करते हैं, लैंग्वेजेस कौन सी यूज़ करते हैं। तो ये लेटेस्ट टूल्स जितने आप इनोवेटिव और
न्यू आइडियाज़ होंगे वो न्यू टूल्स पे इम्प्लीमेंट होंगे। आपके प्रोजेक्ट के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट कितने हैं, कितने परसेंट जो है वो, या कितनी उसकी आपके प्रोडक्ट का जो इम्पैक्ट है वो कितने लोगों को एट अ टाइम सर्व कर रहा है। अगर सपोज़ मैं बात करूँ अपने सेंसर, अगर मैं अपनी स्ट्रीट में सेंसर डिप्लॉय कर देता हूँ तो वो शायद सिर्फ मेरी स्ट्रीट पे ही उसका इम्पैक्ट है। ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट उसका इम्पैक्ट उसका सिर्फ मेरी स्ट्रीट के कोई 8 घर हैं इन लोगों पे है। तो लेकिन अगर मैं पूरी सोसाइटी में कर दूँ तो शायद जो है वो 200-300 तो फैमिलीज़ पे उसका इम्पैक्ट होगा। तो ये ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका रियल वर्ल्ड में कितने लोगों पे इम्पैक्ट है आपके प्रोडक्ट का। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ये तो नहीं है कि आपके प्रोडक्ट की वजह से कोई नॉइज़ जनरेट हो रही है। हम हमारी ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट नॉइज़ जनरेट कर रही है। इवन हमारा स्मार्टफोन, हमारा लैपटॉप, हमारी टीवी स्क्रीन, हर चीज़ नॉइज़ जनरेट कर रही है। तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए काइंड ऑफ, कि आप उसकी नॉइज़ मिनिमाइज़ रखिए। आप उसकी जो जितने जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप उन चीज़ों को मिनिमाइज़ करें। सस्टेनेबिलिटी, कि आपका प्रोडक्ट की सस्टेनेबिलिटी कितनी है। बार बार तो उसकी जो है वो जो सेंसर्स हैं या कोई भी एक्स वाई जी है, बार बार तो नहीं चीज़ें ख़राब हो रही हैं। आप उसका प्रोडक्ट को सस्टेनेबल लाइफ लॉन्ग बनाएं, कोशिश करें। ऐसे तो अगर आप हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो अच्छे आप चीज़ें यूज़ करें, और अगर आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट है तो आपके जो एल्गोरिथम्स हैं या आपकी जो बैकएंड पे प्रोग्रामिंग है उसको आप इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि उस पर करप्ट होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएं, या उस पर जो है आपके एरर के चांसेस मिनिमाइज हो जाएं। सस्टेनेबल जितना अच्छा होता है उतना अच्छा प्रोजेक्ट होता है। एथिक्स, डेफिनेटली आपके जो एथिकल कंस्ट्रेंट्स तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। कोई भी एथिकल लाइक आपने इंस्पिरेशन ज़रूर लें लेकिन क्रेडिट्स भी करें। आप किसी का प्रोजेक्ट 100% उठा के इम्प्लीमेंट ना करें, एथिकली भी ठीक नहीं है। और वैसे भी क्या कहते हैं, आप उसको अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट भी नहीं कर पाएंगे अगर आप कोई और प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आपने जितना कुछ सीखा है आप कोशिश ये करें कि आपने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं अपनी ड्यूरिंग योर एजुकेशनल फॉर्मेट, अपने स्कूल से लेके कोशिश करें कि उसको मैक्सिमम चीज़ें इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आप रिकॉल करेंगे और उतनी अच्छी आप इफेक्टिव वे में इसको पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो जितना आपने अच्छा ज़्यादा अपनी लाइफ में सीखी है, चीज़ें सीखी हैं, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के रिलेटेड कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करें, और उसको रिकॉल कर करके उसको अपनी डिज़ाइन टाइमलाइन में लेके। और मेरी तरफ से बस इतना सा ही था, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क, और आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि हर बंदा ही जो है वो इनोवेटिव है। हर बंदे की अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं। हर बंदा कैन जो है ना वो, मतलब एनीवन कैन डिज़ाइन अ प्रोडक्ट और एनीवन कैन विन। जो अवार्ड्स मैंने विन किए हैं, मेरे से पहले भी लोगों ने विन किए हैं और मेरे से बाद भी लोग विन कर ही रहे हैं। तो ये सिर्फ 2 अवार्ड दे के IEEE भी नहीं रुक गया। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसको ज़रूर ज़रूर अवेल करें एटलीस्ट योर इन अंडरग्रेड। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। Okay, sir. Thank you so much. Sir, this is very informative session. Is there any question? Please raise your hand. The host will unmute your mic. One question in chat. Which There is a area, question. which area of innovation is more effective for research in Pakistan software development or hardware product design? सॉरी, मैं समझा नहीं, एक दफ़ा दोबारा रिपीट करते हैं, कैन Which यू रिपीट area दैट? of innovation is more effective for research in Pakistan? Software development or ए hardware product design? it's a really good question. It's a really good question actually. uh, it depends on your approach. लाइक अगर आप एक काइंड ऑफ मोबाइल बना रहे हैं, फॉर मी मैं रिकमेंड करता हूँ हाइब्रिडाइजेशन।
इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज दैट कि आप सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट भी करें लेकिन उसको हार्डवेयर के साथ इम्प्लीमेंट करें. Sir, So and also add hardware something in a question. hardware is very important. Sir, question added something more, which is better for FYP level. Better for FYP, final year project level. in terms of, yeah, if you are CS student, if you are doing some kind of software engineering or IT or computer sciences, I highly recommend to go with the hardware. Like no complete hardware, add some small chunk of hardware in your project. Anything. Made some security systems. You can, although you need some application to operate that kind of security system, but add some hardware with that protocol. I'm a project mentor of two FYPs of the university's external advisor of two FYPs. So actually, I'm sharing with you. You can implement that idea over at your own university as well. I gave the idea to implement the GPS system in the university bus. So in mobile application, there's a small GPS device, or you can use the hardware of your particular driver as a mobile, as a like as a live location, as kind of live location that every student who is nearby that bus, or every student who is standing on a stop at stop, and he knows the bus will come by after 5 or 10 minutes, he can easily check the location of the bus from his or her mobile phone. You can implement over there as well. So I because nowadays everything is like in a hybrid form. If you develop an app, you need some additional configuration to merge it with your hardware of your mobile phone, in terms of speakers, in terms of cameras, in terms of other sensors. So nowadays everything is in form of the balance form. You can, we never say that this thing is particularly, yeah, there's a many particular thing, but most of the things are in hybrid form nowadays. One more question in chat, sir. Yeah, please ask. Many Pakistani industries are not ready to accommodate new innovative technology. So how can we find market support for the industrial products? You can also check your chat Yes, for your I'm question. seeing, I'm seeing the chat box. I'm seeing the chat box. Uh, you can say this is the. I have no words to say what we can do for the industrial things, but yes, you are right. This is a professor in Lahore who implemented the artificial intelligence in the agro. I hope all of you are familiar with the agro industries. Agro fertilizers is kind of the one of the biggest fertilizers exporter or fertilizer producer in Pakistan, Agro Foods. They implemented the data sciences and artificial intelligence on their plant. They deployed around 1 lakh sensors, 1 lakh or 2 lakh sensors on their plant, and after some time, they give the calculations and they give the best optimum, like by acquiring data from all the sensors, they provide the best calculations, the best values for the optimum production of the plant. But the people, the worker, the staff of that plant, the people who are not engineers, they are workers, they are labor of that staff, the plant closed the plant and call a strike. So one more question in chat. उनका You सिंपल ये can कहना था, उनका सिंपल ये कहना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेवर एवर बीट अस. तो इस वजह से इंडस्ट्री को प्रेशर में आके वो चीज़ें बंद करनी पड़ी. लेकिन इंडस्ट्री ने इसको मतलब किसी भी तरह आप बंद तो नहीं की, लेकिन ये है कि लोगों के साथ निगोशिएशन पे आ गए. लेकिन हमारे जो इंडस्ट्री के अंदर जो हमारा लोअर स्टाफ है उसका भी बड़ा इम्प्लीमेंट है. सेकंड थिंग, आप इंडस्ट्रीज आर लाइक industry are for business purposes.
they need money. ठीक है? और if you have good and innovative idea, innovative prototype, innovative, like you have deployed something over at some place in the world, I think no industry in the world will reject you, not even in Pakistan. They need money, and for money they will implement anything on their plant, but it must be right. So next question in chat. You can see And that. Yes, considering the sir. power crisis, Yes, sir. considering the power crisis of Pakistan, and there is a lack of resources, innovation and project development has been more difficult. What advice you can you give to students? Uh, yet there is no lack of resources in Pakistan. I don't think so. There's a lack of resources in Pakistan. If you are good at something, if you are good at anything, you can arrange your resource. I was doing my project on biomedical sciences. I was facing issues regarding data sets. I was facing issues regarding the equipment. I simply emailed to a professor with the reference of IEEE or IEEE EMB Society, and he sent me a data set. There is no lack of resources. I don't think so. There's a lack of resources. If you think there is a lack of resources, it's your, like, it's an opportunity for you to build an opportunity to build that resource. Link your university with some professor. After my project, my university linked that professor, collaborate with that professor in some more projects. It's an opportunity for you, brother or sister. There is no lack of resources in Pakistan. There are many resources in Pakistan, but in the right, it's your responsibility to identify that resource or identify that particular problem and go to that particular person with the positive mindset. Most of people in Pakistan don't trust other researcher or don't trust kind of the in open words don't trust students more, because after the project the student kick the professor, or the student kick the professor out from his the research paper, or the when he's presenting his idea or his project at some higher level. So make one thing, keep one thing in your mind. If you are doing something with someone else, with someone, you have to be with him or with her till the final day of your project, or till the final presentation. Whenever you have discussed, whenever in your life you discuss that project at some place, you must include that name, that the name of your coordinator. Ethically, it's a good thing that you are memorizing or you are remembering the name of your coordinator, or it's very, I feel it's very unethical if someone say I made this, and when I saw the research paper and the other thing on Google, there are 10 people in their research group or 15 people in the research group. So it's, I highly recommend to all of you, ethically or morally, always say we made this in a group, and rather after that you say I was the lead, or I was If anyone wants to ask a question, please raise your hand or you can drop it in the chat window. No question in the chat. Okay, so now we move towards closing.
We will now like to present a little something, a small token of appreciation for our esteemed speaker. Host, can you share it? Sir, this is the small token of appreciation on the behalf of IEEE PF-KIET Student Branch. Thank you very much. Thank you very much for this wonderful token of appreciation, and thank you very much for having me. I have shared my details with you. If you have any query in future, if you are working on project, you need some advice, or if you want to project your project or product in some international competitions or international exhibitions, you can feel free to contact me. Definitely, I will help you out and I will guide you how you can make or the how you can improve if some improvement is required. How I will guide you regarding this. Okay, thank you very much, sir, for being with us. Or I guess it was a very good session. We had a number of questions. तो सबने बड़े इंटरेस्ट के साथ अटेंड किया है and we hope that you have learned some very important things. And Sir Hamza is a very inspiring example of how one can go a long way with IEEE. So I hope that you are motivated to pursue his example and find your own goals and accomplish what you want to accomplish with the help of IEEE. So thank you very much for this opportunity, sir. Thank you for your time. Thank you Thank very you very much for much, having me. sir, for your precious time. Thank you very much. On Okay, behalf Naveen. of okay. On behalf of all the participants and our entire organizing body, we would like to thank you humbly for joining us today and giving us your time. It was an honor for us. Thank you so much, sir. Now, we would also like to thank our participants for joining us today and showing interest in our events, particularly those who have joined us today from Malaysia, Iraq, India, Qatar, Kenya, Singapore. Thank you so much for your continued support. So, thank you once again and goodbye for now. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir.